Hi guys, welcome to the video. And lately we have been getting a lot of questions regarding the IMT's DCP program. So I thought why not to make a video about it so as to clear all those queries and concerns and doubts. So myself Abhinav Sharma and I am a student of IMT Ghaziabad, currently enrolled in their DCP program, which is dual country program. And I am currently in Dubai and she is my classmate. Hi everyone, I am Devanshi and I'm also a student of IMT Ghaziabad DCP program, and also I'm a fresher, so I believe that you'll be able to get forward with all the doubts which you're having right now, and we'll be able to solve them as well. Yeah, so I have a work ex and she is a fresher. So as she mentioned, you will get both the perspectives. So now we'll be starting with questions you guys have asked on LinkedIn, on Instagram and other platforms. So she'll be asking questions and I'll be answering them to my best. So we'll be just starting in a way that from the start, Yeah. like how is it being a DCP student for you? Okay. Being a DCP student. Okay, तो we'll be using a mix of language. हिंदी भी यूज़ करेंगे, बीच में इंग्लिश भी यूज़ करेंगे, ठीक है. तो DCP स्टूडेंट होके कैसा लगता है? It feels good. मतलब you get all the experience and things, and you get to meet a lot of global faculty. You get to meet a lot of international people. Okay, if you could like provide some light on कि मतलब एक रोज का दिन कैसा रहता है for a DCP student? Okay. That's what I meant. Okay. रोज़ का दिन एक चीज़ मैंने देखी है. गाज़ियाबाद से यहाँ आने के बाद, दुबई आने के बाद जो ओवरऑल एकेडमिक जो ओवरऑल शेड्यूल चलता है ना, डैट इज़ वेरी सेट शेड्यूल. वो होता क्यों है उसके ऊपर भी मैं बाद में आऊँगा. क्वाइट आवर्स एंड देयर आर सेवरल थिंग्स, आई विल कवर देम लेटर. बट ओवरऑल काफ़ी आपका जो डे होता है ना, काफ़ी सेट होता है. लाइक सेट टाइम पे उठना है, सेट क्लासेस होती हैं. आई एम नॉट सेइंग नंबर ऑफ़ क्लासेस सेम होती हैं हर दिन, बट उनकी जो ड्यूरेशन हो गई एंड ओवरऑल जो टाइम हो गया पूरे दिन का, वो मोर और लेस सेम ही रहता है. Agreed. तो उसी टाइम आप उठते हो, सेट टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट है, वो क्लासेस होती हैं. फिर आप अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों जैसे यू प्ले स्पोर्ट्स और यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स और आउटडोर इंडोर और मे बी यू आर इनटू जिम, तो हर चीज़ का टाइम सेट रहता है. क्योंकि यहाँ पे जिम बंद होने का भी एक पर्टिकुलर टाइम है एंड लंच एंड डिनर का भी पर्टिकुलर टाइम है. उससे लेट करते हैं तो वो बंद हो जाते हैं. तो आपको हर चीज़ अपनी दिन में एक सेट रखनी पड़ती है, तभी आप सारी चीज़ें अचीव कर पाते हो. तो दिस इज़ हाउ अ टिपिकल डे लुक्स इन द लाइफ ऑफ अ DCP स्टूडेंट, कि काफ़ी दिन सेट रहता है. I believe if I have to like mention some things, it's like you have classes daily. Yeah. If something is happening in class, for example a quiz or Right. a presentation, that is something new because that happens at the end of the course. So that is something new. But it's like you go to classes, you have lunch, you go to classes again. You maybe like go to some places in the evening, maybe like to Burj Khalifa or some other places. Yeah. If you go to other places, it gets amazing, but other than that, it's very stagnant. We have a very stagnant life. इसके अंदर मतलब हम लोग की same schedule चल रहा है, and you get used to it. Maybe you are like while listening to it, you are thinking कि बहुत boring है, but you get very used to it. You get used to it and you yeah, will love it actually. हाँ, exactly. एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा, मतलब when we reached here from Ghaziabad, so Ghaziabad campus I would say is very lively and in a positive sense it is very noisy as well. ठीक है, क्योंकि once you join the campus you'll know what I am talking about. कोई ऐसे restrictions नहीं होते हैं, कोई ऐसे quiet hours नहीं होते. ओके, सो covering the quiet hours as well, यहाँ पे एक concept और चलता है quiet hours का. तो after 11 PM you cannot make noises, basically ये है इसका मतलब. तो आप जितनी भी लॉबी हो गई, कॉरिडोर्स हो गया, इनमें यू कैन नॉट प्ले म्यूज़िक, और आपका जिम भी बंद हो जाता है, यू कैन नॉट प्ले एनी स्पोर्ट्स. तो ओवरऑल जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि गाज़ियाबाद कैंपस से इधर आना, इट वाज लाइक हर किसी के मन में था यार कैंपस इतना साइलेंट है. ओवरऑल कैंपस इज़ वेरी साइलेंट. और जो लोकेशन है IMT की, दैट इज़ इन DIAC, दिस इज़ नोन एज दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी. तो अभी भी हम उधर ही हैं. तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है DIAC, दैट इज़ वेरी क्वाइट एरिया ओवरऑल. ठीक है, बहुत शांति रहती है वहाँ पे. तो कंपेयरिंग
गाज़ा कैंपस टू दुबई कैंपस बहुत शांत रहता है. Moving forward with the next question. Somebody basically asked, how can we look forward with growth opportunities with this program? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. Yeah, for a longer run. ओके. देखो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जहाँ तक मेरे को लगता है डीसी प्रोग्राम में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है. ठीक है. नंबर वन रीज़न वाई आई थिंक इज़ यू do the internships here, so you are working in global settings, so you get to learn a lot about the global market, you get to learn a lot about people from different nations. तो जब आप ग्लोबल सेटिंग्स पे काम करते हो, जब आप ग्लोबल मार्केट देखते हो ओवरऑल, तो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. और वो लर्निंग्स आपकी कहीं भी काम आ सकती हैं इन लाइफ. मे बी यू स्टार्ट वर्किंग इन इंडिया, तो वहाँ पे भी. तो ग्रोथ इन अ लॉन्गर रन फॉर मी इन दी DCP प्रोग्राम इज़ एक्चुअली अ लॉट, क्योंकि लर्निंग बहुत सारी है यहाँ पे, बहुत सारी हैं. यू लर्न फ्रॉम दुबई एक्चुअली, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दुबई, यू लर्न थिंग्स फ्रॉम द पीपल अराउंड हियर, यू लर्न फ्रॉम द फैकल्टी, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल फैकल्टी होती है. तो एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ना और एक इंटरनेशनल फैकल्टी के थ्रू पढ़ना, हु आर कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर, हु आर कमिंग फ्रॉम हंगेरी और मे बी UK, USA. तो इन ये जैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में पले बड़े हैं, वो जब हमें लर्निंग आती है तो इट गेट्स लॉट एक्साइटिंग और बहुत लर्निंग्स होती है. Talking about comparison, a lot of people think that the IMT core program is very much superior or something like that. So what is your take on the comparison, like the IMT core program and the DCP one? What's your take on that? Okay, so see, both the programs are good in my opinion, और दोनों ही प्रोग्राम बहुत ही एक वर्सटाइल अप्रोच के साथ भी आते हैं. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा वाला प्रोग्राम को ज़्यादा वेटेज देते हो या प्रेफरेंस देते हो. फॉर मी बोथ द प्रोग्राम्स आर गुड. कंपैरिजन भी होता है, बट फॉर मी इट्स लाइक बोथ दी प्रोग्राम्स कैन नॉट बी एक्चुअली कंपेयर्ड. लाइक एप्पल टू एप्पल वाली चीज़ होती है, वो कंपेयर हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वन प्रोग्राम इज़ IMT कोर प्रोग्राम, जहाँ पे आप गाज़ियाबाद में ही हो और इंडियन सेटिंग्स में ही यू आर वर्किंग, इंटर्नशिप भी वहाँ पे होती है. आई एग्री, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल MBA B स्कूल. कमिंग टू दुबई इट्स वे डिफरेंट एक्चुअली. अगर मैं बात करूँ, एज आई मैंशन प्रीवियसली, ग्लोबल सेटिंग्स, वर्किंग ग्लोबल सेटिंग्स, यहाँ की फैकल्टी से इंटरेक्ट करना हो गया, यहाँ का ओवरऑल इन्वायरमेंट देखना, यहाँ लोगों से इंटरेक्ट करना. तो MBA इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने बुक्स पढ़ लिया, आपने एग्जाम्स दे दिया, आपने लोगों से इंटरेक्ट कर लिया जो आपके पीयर्स हैं, दैट्स इट. MBA इज़ नॉट अबाउट दैट. MBA इज़ लर्निंग फ्रॉम योर इन्वायरमेंट एज वेल. तो जब आप ऐसे कंट्री में आते हो विच इज़ एज यू मैंशन ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट, तो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर. और जब आप ऐसे मार्केट में होते हो ना, तो तब जाके इस प्रोग्राम की आपको वैल्यू समझ में आती है कि जब IMT मेंशन करता है ना कि यू विल गेट ग्लोबल एक्सपोजर एंड थिंग्स एक्सेट्रा, तब यू विल गेट टू नो कि व्हाट दिस प्रोग्राम एक्चुअली इज़. तो अब हमें कितने महीने हो गए इस प्रोग्राम में? I feel we came in June, so it's been 9 months. मतलब हमारा फर्स्ट ईयर अब कंप्लीट होने वाला है. हाँ. इट्स लाइक वी विल बी हैविंग आवर एग्जाम्स. राइट. तो फाउंडेशन टर्म जो होता है, जो फर्स्ट मंथ होता है, वो गाज़ियाबाद में होता है, और फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है विच कंसिस्ट ऑफ 4 months, तो वो आपका गाज़ियाबाद में होता है. उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, तो सेकेंड टर्म आपका यहाँ पे होता है. तो I feel, yeah, you are mentioning it right, but while we are talking about the comparison, why not talk about कि Reddit पे DCP does not have a good image over there. So while talking about the market, what is it like, the DCP in the market, and is it true what's written on Reddit or something? ओके. तो ठीक है. तो ये जो डाउट्स आ रहे हैं, ये बहुत ही जेन्युइन डाउट्स हैं. आई एग्री, क्योंकि हम लोग भी थे लास्ट ईयर सेम सिचुएशन में थे. वी वर इन डिलेमा कि ये प्रोग्राम चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. और रेडिट पे पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव, लाइक इट्स अ मिक्स्ड बैग. और मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, नेगेटिव थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा है इस प्रोग्राम के बारे में. ओके. तो जितनी चीज़ें पढ़ी थी और जितना अपने सीनियर से भी वी आस्क्ड कि हाउ इज इट, एग्जैक्टली द सेम वे यू गाइज आर डूइंग. यू गाइज आर कॉन्टैक्टिंग अस ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम. हम लोग भी ये कर रहे थे. बट नाउ गोइंग थ्रू दिस कोर्स, दुबई में भी हैं, दुबई लर्निंग
I honestly, like completely being honest with you, I honestly feel like नेगेटिव जितनी बातें कर रखी उतना है नहीं है नेगेटिव एक्चुअल में, बल्कि पॉजिटिव ज़्यादा हैं इस प्रोग्राम के जितनी नेगेटिविटी. आई डोंट नो वो नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, कैसे बिल्डअप हो रही है. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को नेगेटिविटी नहीं लगी इस प्रोग्राम की. व्हाट डू यू थिंक? I feel that what's written on Reddit may be, I don't know if it's true or not. From my experience, it's not. I have been having a wonderful experience while being a DCP student. I feel maybe DCP की इतनी वैल्यू नहीं होगी. That is around like 7 to 8 years back. Right. But right now, DCP has the value. It has If I have to value. tell you, DCP is doing great. One of our like team, actually our classmates, I would say. He and his team has actually won the L'Oreal wala competition, Yeah. L'Oreal case competition, L'Oreal which case is at competition. the international level, and it's a very big thing. So DCP is growing wonders, and if you'll talk about it, it is at the same par at IMT's core It program right now. We are getting the same packages, we are getting the same exposure, actually a greater exposure in terms of Greater the global exposure, exposure. So I believe that whatever it is written on Reddit, basically it's not true. It might be a few years back, but currently the situation has changed, and A the lot. situation over here, the market, everything has changed. Everything And has DCP is growing a lot, and अब उसका इतना value हो गया है कि it is having like great exposure and everything. Also, while we are talking about the case comms, somebody mentioned कि case comms का यहाँ पे क्या scene रहता है, मतलब can we participate in case comms, You मतलब cover. at Ghaziabad level and also here we know कि we can participate over here while Yes. coming, but can we participate in case comms in Ghaziabad? That is the question. Okay. So case competitions which are coming in IMT Ghaziabad. हाँ. Actually, we do get that opportunity. We are allowed to participate in those competitions. बट मेजरली स्टूडेंट्स जो हैं वो चूज़ करते हैं कि आपके जो केस कंपटीशन, जैसे एक अनस्टॉप एप्लीकेशन है, ठीक है. अनस्टॉप इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय. No, I would like to correct you on that Okay. part. In Ghaziabad, we are allowed to participate in case comms, but we can't go to finals because case comms majorly come for PPIs, which is pre-placement internships. So we can't take placements for the internship in Ghaziabad. So we have to come up here and take up the internship. So we can participate in it, but we can't go on a longer run. Or maybe we can participate in the case comms which are not providing the PPIs. What's your take on that? So for the learning, yes, you can participate in the case competition which are provided by IMT Ghaziabad. But if you are confident enough कि मेरे को PPI भी मिल सकता है, तो अगर आप उस स्टेज तक जाते हो तो ऑटोमेटिक आई वुड से रिजेक्शन हाँ. है ना, द ऑटोमेटिक रिजेक्शन वुड बी देयर. तो जनरली फिर स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि क्यों ना केस कंपटीशन इधर ही करें, क्योंकि एज वी मेंशन्ड अर्लियर कि वो लॉरियल वाला जो केस कॉम हुआ तो उसमें दे वुड बी गेटिंग द PPI. तो ये एक बेनिफिट होता है. प्लस देयर इज़ एप्लीकेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट अनस्टॉप. तो अनस्टॉप पे बहुत सारे केस कंपटीशन आते रहते हैं, वीकली अपडेट आते रहते हैं, एंड दैट एप्लीकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ हियर इन इंडिया एज वेल. सो वहाँ पे बहुत केस कंपटीशन आते रहते हैं, करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. और इनफैक्ट जो आपका कुछ क्लब्स एंड कमिटीज़ हैं वो भी मेल करके इन्फॉर्म करते रहते हैं रिगार्डिंग दी केस कॉम्पिटिशन्स. तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट करते हो. तो ऐसा नहीं है कि केस कंपटीशन नहीं हो सकते. केस कंपटीशंस का तो बहुत ही ओपन सिनेरियो, ये यू कैन पार्टिसिपेट. इनफैक्ट एन नंबर ऑफ केस कंपटीशंस आर देयर. करते करते थक जाओगे. Okay, so as you mentioned about clubs and committees, Yeah. why not talk about them? Right. So what is like, what are the clubs and committees, or what is your take on the clubs and committees at Ghaziabad and also in Dubai? Like, give a whole scenario about it. Okay. कि तुम वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल तुम वहाँ पे एक क्लब एंड कमिटी में हो, तो क्या तुम दुबई में भी हो सकते हो, ठीक या है, फिर okay. तुम्हारे पास क्या एक एक्स्ट्रा वो हो जाएगा अगर तुम दोनों में होगे, समथिंग लाइक दैट. ओके, आई विल टॉक अबाउट इट. तो एक मैंने ये क्वेश्चन भी देखा है कि क्लब्स एंड कमिटीज़ क्या इधर भी होती हैं IMT दुबई में. तो येस डेफिनेटली क्लब्स एंड कमिटीज़ दुबई की अलग हैं, गाज़ियाबाद की अलग हैं. और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ गाज़ियाबाद क्लब एंड कमेटी एज वेल एंड दुबई की भी. तो आप उधर भी किसी एक क्लब और कमेटी में हो सकते हो, आप इधर भी किसी एक क्लब एंड कमेटी में हो. तो कंबाइंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ टू
clubs and communities. which is like a upper hand Upper to the hand other compared core to PGDM programs. program. हाँ, उनके पास क्योंकि ये होता है कि they can be part of only one club One. and committee, and Yeah. over here you can be part of 2 clubs and committees, Two. which is like a CV pointer basically for 2 Yes. of the things. Yes. So that is a well off thing. प्लस And, कभी एक हाँ, बार ये भी मन में आता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं और इधर आके हम फिर अगर क्लब एंड कमेटी का पार्ट है तो इधर कैसे कोऑर्डिनेट करें बाकी टीम से, तो वो एक्चुअल में कोई इशू होता नहीं है। आज की डेट में इतने ऑनलाइन चीज़ें चलने लगी, ऑनलाइन मीटिंग्स, एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता कोऑर्डिनेशन में। एंड सिंस टाइम डिफरेंस भी इतना नहीं है, 1.5 आवर्स का टाइम डिफरेंस है जस्ट, तो ऐसा कोई भी इशू फेस नहीं होता है बाई द स्टूडेंट्स की वहाँ का काम सफ़र कर रहा है या वहाँ से हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। and honestly I'll encourage people who are like joining the campus, they should be part of the clubs and committees. If you're Definitely. not the part of club and committees in Ghaziabad, कम से कम दुबई में हो, because लाइफ क्या, इट्स वेरी हैपनिंग। तुम कभी कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हो इवेंट या तुम उसके लिए काम कर रहे हो, दैट गेट्स वेरी लाइक गुड कि मतलब तुम उसके लिए काम कर रहे हो तो you get networking, you do networking over there, and also you make a good set of people around you, you have good set of people while you're working, and वो बहुत अच्छा experience होता है, तो that gets very good. तो I prefer कि you be part of clubs and committees, if not in Ghaziabad, be part over here, क्योंकि Right. तुम्हारी लाइफ इतनी बोरिंग नहीं रहेगी if you have to compare. Yeah. Also, what would be an exclusive fees if we consider everything like hostel mess, traveling, like if you're going somewhere? Okay, all right. Interesting. So PGDM program की fees is approximately 20 lakhs and DCB program की fees, right? है ना? And DCB program की fees is approximately 30 lakhs. So वो 10 lakhs का difference आ जाता है first, जिसमें आपका hostel and mess is included. Regarding the travel is up to you कि आप कितना frequent travel करते हो और कैसे और कहाँ पे जाते हो, क्योंकि दुबई में ट्रैवल इज़ एक्सपेंसिव। यहाँ पे Very कैब्स expensive. हो गई, इनफैक्ट अगर आप बसेस वगैरह भी लेते हो तो कमिंग फ्रॉम इंडिया महंगा है और आपका मेजर चंक ऑफ मनी यहाँ पे ज़्यादा जाएगा। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो एक्चुअली। तो स्पीकिंग अबाउट मतलब दिस ट्रैवल एक्सपेंस, मंथली जब हम लोग इधर आए थे तो एक एक्साइटमेंट थी कि हर जगह घूमना है और हर जगह जाना है, तो इनिशियल मंथ्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ। व्हाट डू यू थिंक कितना हुआ होगा लगभग मंथली? हो गया था, आई फील अपना 50,000 तो Per month. आई फील, बट नाउ अब हमारा थोड़ा अब कम हो गया है, ऐसा मतलब बहुत- स्टार्ट हाँ, में इट वेंट 50,000 40-50,000 बहुत टच आराम होने से, लगा था बहुत मंथली, आराम से। और अब जाके इट इज़ अभी इट्स लाइक हम लोग जाते हैं बाहर, ऐसा नहीं है, बट इट इज़ लिमिटेड। तो मेजर ऑफ द एक्सपेंसेस इज ऑन द फूड एंड अदर इज द लाइक ट्रैवल एक्सपेंसेस। करेक्ट। तो अगर आप लोग इतना ट्रैवल नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर लाइक स्टेइंग इन द हॉस्टल, यू आर नॉट गोइंग टू, यू आर जस्ट लाइक ईटिंग फूड फ्रॉम द मेस, सो आई फील एक साल में 3 लाख समथिंग अप्रॉक्सीमेटली, यस। approximately, if you're not traveling much. हाँ, To manage your own expenses, you have to balance it. It depends totally on you. करेक्ट। तो इसमें तो we can't just give it a proper प्लस take. एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा, इनिशियली हम आते हैं तो हमें इतने ज़्यादा कहते हैं ना एप्लीकेशंस हो गए एंड वेज नहीं पता होते हैं टू सेव मनी। धीरे धीरे आप रहने लगते हो, आपको पता लगने लगता है कि ठीक है एक ये भी तरीका है, एक ये भी एक जुगाड़ है, या फिर मे बी ये एक एप्लीकेशन है जिससे मैं सेव कर सकता हूँ मनी। तो वील बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स इन मे बी सम अदर वीडियो, क्योंकि वो एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और क्योंकि मतलब वी गॉट सम आइडियाज़ फ्रॉम दी सीनियर्स, बट वील ट्राई कि हम लोग आपको और ज़्यादा आइडिया दे पाएँ कि आप आते ही उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, तो मे बी वी कैन हेल्प यू कि आपका एक्सपेंस उतना ज़्यादा ना जाए। हाँ, तो बिफोर कमिंग टू दुबई वाला सीन, some people are asking कि before joining the college, Right. what all courses or what should they do to like uplift their CV, कि बाद में जाके उनको दिक्कत ना हो। Correct. So what should they do? You have experience, so Right. you would be able to provide basically a good idea on that. करेक्ट। हाँ, ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट ओवरऑल प्रोफाइल, सी फ्रॉम एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से फर्स्ट फाइंड योर डोमेन, in which field you are interested, in which domain you want to work.
पहले उसको पकड़ो और फिर उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करो, दैट वुड बी मच बेटर. क्योंकि हेयर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ CV ऑफ कलीग्स एंड क्लासमेट्स, और ऐसा होता है कि आपका जो ओवरऑल CV है, यू माइट हैव सम वर्क एक्स इन अदर कंपनी, मे बी अ डिजिटल मार्केटिंग, फिर आपने काम कर लिया मे बी सेल में, फिर आपने किसी और फील्ड में काम कर लिया, फिर किसी और फील्ड में काम कर लिया, कोर्सेज आपने अलग फील्ड के कर रखे हैं. तो दिस गिव्स अ नेगेटिव इम्प्रेशन टू अ रिक्रूटर, चाहे वो इंटर्नशिप के लिए आ रहा है, चाहे वो फाइनल प्लेसमेंट के लिए भी आ रहा है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास डाइवर्स एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, बट एक सेंट्रिक आपकी प्रोफाइल ज़रूर दिखनी चाहिए. जैसे फॉर से यू आर इंटरेस्टेड इन सप्लाई चेन, तो आपका अगर वर्क एक्स डिजिटल मार्केटिंग में भी है, आपका कंसल्टेंसी में भी है, और आपका फाइनेंस में भी है फॉर से, तो इट्स ओके टू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस. बट आपके जो फिर कोर्सेज होने चाहिए वो अलाइन करने चाहिए सप्लाई चेन की तरफ. मे बी यू हैव डन ग्लोबल सप्लाई चेन, मे बी यू हैव डन 6 सिग्मा. आपका एक वर्क एक्स होना चाहिए, मेजर वर्क एक्स होना चाहिए सप्लाई चेन की तरफ. तो कोई भी CV देखा और कहे कि ठीक है इसने काम कर रखा है, बट CV और ओवरऑल प्रोफाइल सप्लाई चेन का सेंट्रिक दिख रहा है, तो डैट वुड बी अ रियली हेल्पफुल फॉर यू. तो उसको पहले आप पकड़ो कि आपको कौन सी फील्ड एक्सप्लोर करनी है, फिर गो टूवर्ड्स इट. इतनी जल्दबाजी मत करना कि ज्वाइन करने से पहले मैं ये कोर्स भी कर लूँ, ये कोर्स भी कर लूँ. क्योंकि जब आप कोर्स कर रहे होते हो, जब आप अपने टाइम में होते हो, IMT MBA के टाइम में होते हो, तब आपको काफ़ी चीज़ें लर्निंग होती है कि ठीक है दिस इज़ माई इंटरेस्टिंग फील्ड, ओके दिस इज़ माई इंटरेस्टिंग फील्ड. तब जाके आप डिसाइड कर पाते हो. अभी इट्स टू अर्ली टू से ज्वाइन करने के भी 2 महीने या 3 महीने पहले कि मैं कौन सा कोर्स करना शुरू कर दूँ. गिव मी 1 मिनट, ठीक है. ओके, सो चेंज ऑफ लोकेशन नाउ. Okay, as I was mentioning, question ये था कि मतलब academics, how is academics over here? How is the faculty, and what is the scene of CGPA like over here? Okay, so what's would your you take? like to answer? Yeah, okay, no problem. So I feel that academics over here is pretty much like similar to what we find at IMT Ghaziabad and other colleges as well. तो लेकिन faculty का ये scene रहता है यहाँ पे कि faculty is totally international. Like इक्का दुक्का हो गए, they are from India, but we get an international exposure, and जो practicality of knowledge की हम बात करते हैं वो हमें यहाँ पे आके मिलती है. It's not about everything is theoretical. We deal with practical knowledge, and we like are engaged in a lot of projects and also good things which we learn from the international faculty. So you get an experience on that. And if I have to talk about CGPA का क्या सीन रहता है? You have a lot of people around there, around 1300 or 1400 people in which you have to like compete for a CGPA. So when you come over here, there are around 200 or 210 people. So it gets easier for you to get a good CGPA in comparison to while being there. So you have an upper hand while you are like going for placements because you have a good CGPA first of all. So that gets very good in that senses. Right. Now if we talk from the college perspective, दोनों प्रोग्राम के बीच में डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ठीक है. एंड इनफैक्ट वी ऑल्सो एग्री कि डिफरेंशिएशन कभी भी कुछ नहीं होता, क्योंकि कईयों के डाउट होते हैं कि प्लेसमेंट के टाइम पार्शियलिटी करते हैं क्या, या फिर इंटर्नशिप्स के टाइम पार्शियलिटी होती है. ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कुछ बायसनेस हो. नहीं होता है ऐसा कि जो PGDM प्रोग्राम वाले हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, या फिर DCB वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, कम दी जा रही है, वाइस वर्सा, व्हाटएवर इट इज़. ऐसा नहीं होता, इक्वल ग्राउंड पे रखे जाते हैं. बट व्हेन इट्स कम टू दी ग्राउंड रियलिटी, व्हाट शी मेंशन एंड व्हाट आई आल्सो मेंशन प्रीवियसली इन द वीडियो, आपको ओवरऑल एक जो लर्निंग है वो आपकी ज़्यादा होती है. तो व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड रियलिटी, जब आप एकदम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते हो, आई मीन व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अ PGDM स्टूडेंट, you will definitely find yourself at par with them, like, in my humble opinion. What do you think? Yeah, I feel the same because I feel एक तुम्हारे पास अपर हैंड ही हो जाता है because you have a global experience. So in that senses, everything in academics is like pretty much good. It is all practical and you do presentations, you do a lot of quizzes, so you get a lot of knowledge over here. So it's good. And also while we are talking about placements, what's your take on the summer placements going on, and what is like the overall situation? The internships? Yeah. सही. एक जो डाउट आ रहा है कि क्या सबको इंटर्नशिप मिलती है, डेफिनेटली सबको इंटर्नशिप्स मिलती है यहाँ, फॉर श्योर. एंड इंटर्नशिप का सिनेरियो ये है कि एवरेज स्टाइपेंड आई वुड से इज़ अराउंड 2 to 2500, करेक्ट. सो और कंपनीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी आती हैं यहाँ पे, विच आर लाइक
some companies are MNCs as well, some companies are local as well, but overall जो आपकी learning होती है उनमें, that is good, right? Yeah, one question which I'm usually getting is like कि क्या मेजर ऑफ दी अपनी इंटर्नशिप्स आती हैं वो सेल्स के लिए होती हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. सेल्स की भी आती हैं बट यू गेट गुड इंटर्नशिप्स इन डिजिटल मार्केटिंग और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मे बी लॉजिस्टिक्स, या सो यू गेट लॉजिस्टिक्स रोल्स. मतलब अच्छी कंपनीज में मिलती हैं और साथ साथ अगर तुम्हें मतलब स्टाइपेंड की बात करो तो अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है एंड रोल्स भी अच्छे हैं. एंड मोर ओवर इफ़ यू गेट इन टू अ स्टार्टअप ऑल्सो, अगर तुम्हें कोई अच्छी MNC नहीं मिल रही है गेटिंग इन टू अ स्टार्टअप, तो इट इज़ लाइक you get hands-on experience on new things, you learn from the basic level. So तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है. ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप नहीं मिल रही है या फिर अच्छा रोल नहीं मिल रहा है, अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं. यू गेट एवरीथिंग. एंड अगर हम अभी की बात करें, हमारी अभी इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है बेसिकली, मतलब प्लेसमेंट पीरियड चल रहा है, तो people are getting good jobs, people are getting good roles. Regarding the roles and positions, I am a person who is interested into supply chain. So I got internship in supply chain and logistics. And she is a marketing person, तो she got internship in marketing. Yes. तो ऐसा नहीं है कि sales and marketing की ही आ रही हैं. If you are into sales and marketing, you will get sales and marketing. If you are into finance, you will get finance. तो this is not true कि सिर्फ यही companies आ रही हैं. Dubai is a very big market and you get n number of opportunities for internships here. So you get a lot of opportunities. Yeah, while we are also talking about the summer placements, what do you think is it like being a decent student over here? How does a decent profile looks over here of a student? What do you think on it? I feel that you have average marks in like 10th, 12th and your graduation. These all matter. But I feel your skills as well as your CGPA which you'll like build over here matters more than 10th, 12th and your graduation. Because that will eventually help in certain kind of like internships, getting internships or maybe getting certain kind of placements. So that what matters over here. What's your take on that? I think yes, CGPA do matters, but मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो अपने MBA लाइफ में जो आप अपना स्किल सेट डेवलप करते हो ना, that matters a lot, और इनिशियली भी और इन द लॉन्ग रन एज वेल. तो एक डिसेंट मैं प्रोफाइल कहूँगा तो एज शी मेंशन कि ऐसे नहीं है कि टॉप 10 on 10 स्कोरर्स, ऐसे भी हैं लोग जो ओवरऑल लाइक 10, बट ऐसा नहीं है कि पूरा बैच ही ऐसा है. बट मोस्ट नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड हेयर. उनके CVs भी बहुत अच्छे हैं और उनके प्लेसमेंट भी अच्छी कंपनीज़ में हुई है. दे आर डूइंग ओवरऑल गुड. और एकेडमिक्स में बात करें तो दे आर डूइंग प्रीटी गुड. तो I think this is what average profile is. Yeah, that's what average profile looks like over here. Nobody is like a top scorer. मतलब हैं कुछ लोग और ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसे टॉप स्कोरर सारे ऐसे PGDM में भी मिलेंगे. लाइक इफ यू आर इन अ कंफ्यूजन, हाँ, PGDM का भी ऐसा ही मिक्स बैग है और DCP का भी ऐसे मिक्स बैग है. तो इट्स नथिंग लाइक कि PGDM में ही सारे कुछ पर्टिकुलर टाइप के भर दिए हैं या फिर DCP में कुछ अलग टाइप के हैं, ऐसा नहीं है. नहीं, it's pretty similar. And also somebody asked that do we have to look for the opportunities ourselves or does the placement committee help us? See, majorly placement committee is responsible for your internships as well as the final placements, but you are always open to find opportunities on your own as well. अगर आपको लगता है कि आप का लिंक इतना है, अगर आपकी sources हैं who can provide you internships, तो definitely. Somebody asked that can we be part of the placement committee? Of course we can be a part of but placement over committee. here, not Over there. In Dubai, right? Yeah, Yeah, we can. the person asked that if we can be part of the main placement committee. Actually, no. Yeah, we can't. The placement committee who's running in Ghaziabad, right? Yeah, which is running in Ghaziabad. Okay. No. You cannot be a part of main placement committee who are operating in Ghaziabad. You cannot be. We can be part of the placement committee over here, which is known as SCSC. So we can be part of that committee, and it is like fairly same operational. It's doing the same amount of work and same things. So it's pretty similar. So you can have hands-on experience of being part of the placement committee, but in Dubai. Right. So इधर के yes आप part हो सकते हो. Okay. So like
ये सब प्लेसमेंट का, समर इंटर्नशिप का तो हमने बात कर लिया. राइट. So we'll talk about the main placements later on. People are like very curious about how are the hostels both in Okay. Ghaziabad and in Dubai itself, and how is the mess food. That's the major Okay. concern, and a lot of vegetarians have been asking. ठीक है. एज अ वेजिटेरियन हम लोगों का भी बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि इधर आके कैसा खाना रहेगा, और जैसे मतलब टेस्ट बस डेवलप्ड हैं, कैसे वो सेटिस्फाई होंगे. एंड दुबई, तो आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दिस क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम. तो ठीक है, आई कवर दिस क्वेश्चन. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो मैं चीज़ प्रीवियसली मेंशन कर रहा था, यहाँ पे क्वाइट आवर्स वाली सीन है. सिंस यू मेंशन अबाउट द हॉस्टल थिंग्स, तो नंबर वन डिफरेंस बिटवीन गाज़ियाबाद एंड हियर इज़ कि यहाँ क्वाइट आवर्स लग जाते हैं. तो आफ्टर 11 यू कैन नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, इट्स लाइक क्वाइट आवर्स. And you can't even talk loudly. यू कैन नॉट इवन टॉक लाउडली. यस. तो सेकेंड इज़ यहाँ के हॉस्टल्स कोएड नहीं है, जो कि गाज़ियाबाद के हॉस्टल्स हैं. It's Yeah. not like co-ed. The scene is you can go to boys' hostel if yes, you are a yes. girl, but over here there are a lot of restrictions. You Proper can't even restrictions. go to their like hostels because if you are interested in some kind of project works or any other thing, so you can't go to the hostel. तो ये सिनेरियो है. एंड कमिंग टू दी फूड थिंग, फूड इज़ प्रीटी गुड हियर. अब मैं एग्जैक्टली देखो ऐसे नहीं कहूँगा कि जैसा इंडिया का खाना है या फिर जैसा गाज़ियाबाद कैंपस का खाना है एग्जैक्टली वैसा है, क्योंकि यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री. तो यहाँ के स्पाइसेस से लेके हर चीज़ इज़ बिट डिफरेंट, राइट. एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग. तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, बट इट्स लाइक गुड फूड ओवरऑल. मैं ये नहीं कहूँगा कि एवरेज है, और इट्स गुड फूड, इट्स गुड फूड. And vegetarians can survive. हाँ, वेजिटेरियन कैन सर्वाइव. और कैन सर्वाइव क्या मतलब, फॉर देम द फूड इज We get a lot of variety of food over here. हाँ, एक चीज़ है कि हमें यहाँ पे वैरायटी बहुत मिलती है, जो आपको गाज़ियाबाद कैंपस में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी. यहाँ पे यू गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी. मे बी आई डू वन थिंग, आई अटैच अ पिक्चर ऑफ द फूड प्लेट इन द वीडियो इटसेल्फ. If we talk about कि हमें बाहर जाना है खाने का या ऐसा कुछ वाला, राइट. तो are the expenses manageable in Dubai? डेफिनेटली दे आर मैनेजेबल. ऐसा नहीं है दुबई इज़ एक्सपेंसिव, आई गेट इट, बट ऐसा नहीं है कि इतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि यू आर नॉट एबल टू इवन मैनेज योर दीज खर्चास. ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं. दे आर मैनेजेबल. प्लस यहाँ पे कई अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कई ऐसे अच्छे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे इट्स रीजनेबल रेट. मैं ये नहीं कहूँगा एकदम इंडिया के बराबर रेट है, थोड़ा सा हाई है, बट कंपेयर टू दुबई कम रेट है. एंड द फूड इज़ प्रीटी गुड एज वेल. तो वहाँ पे मैनेजेबल हो जाता है. एंड ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं कि हॉस्टल के पास में कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन सा कैफ़े है, कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, हमारा बजट कितना है, और ट्रैवल कैसे करना चाहिए, ये सारा किसी एक वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. Yeah. So I believe we have covered up everything in Yeah. Dubai wala scenario. Correct. Moving forward with the placements. Right. So how is the scenario of the placements? Like we get 2 choices, right? Right. So what's your take on that? Okay, so for the final placements, yes, we do get 2 choices. You can select Dubai or you can select Ghaziabad. So it's totally upon you. And biasness बिल्कुल भी नहीं होती है. ठीक है, biasness बिल्कुल भी नहीं होती है from any PC member or from the college point of view as well, कि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है या इसको कम देनी है, और वाइस वर्सा. ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो यू आर इन द पावर हियर. यू कैन चूज़ कि आपको दुबई की सेटिंग ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि सी आप इधर इंटर्नशिप करते हो तो यू गेट एन आइडिया, राइट, Yeah. कि इधर की सेटिंग्स कैसे वर्क कर रही हैं. और आपने अगर इंडिया में भी आपका कुछ वर्क एक्स है तो यू नो कि इंडिया में भी कैसा है. तो बहुत बच्चे हैं जो यहाँ का भी सेलेक्ट करते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ का भी सेलेक्ट करते हैं गाज़ियाबाद पे. As you mentioned, Okay. like WorkX people have a like greater hand over here, या फिर उनको अच्छी opportunities मिलती हैं. तो what is it about the freshers? कि मतलब freshers के साथ क्या सीन है यहाँ पे? Do they get good opportunities? Do they get good roles? Like an exclusive of it. We are talking about placements as well as SIPs. All right. So speaking from experience, what I have seen is freshers as such कहीं lack नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, they with the help of certain courses in line and with a proper thought कि उन्हें कौन सी डोमेन में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, they do get a pretty handsome amount of opportunities as well as their CV build up is also good. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि
बिल्कुल भी ऐसा ही है कि एकदम जो वर्क एक्स वाले होते हैं और जो फ्रेशर्स होते हैं एकदम सेम सारे सिनेरियोज चल रहे हैं, और ऐसा देखो किसी भी कॉलेज में नहीं होता है. एंड यू गेट द आइडिया राइट कि जिसके पास थोड़ा भी अगर वर्क एक्स होता है उसे स्लाइट प्रेफरेंस मिलती है फ्रॉम दी रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम स्पीकिंग नॉट फ्रॉम एनी कॉलेज, नॉट फ्रॉम एनी कमिटी, नॉट फ्रॉम एनी क्लब. कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं होता. फ्रॉम रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूँ तो एक स्लाइड हमेशा रहता है. बट इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड इफ़ यू नो योर डोमेन, यू हैव डन सर्टेन कोर्सेज, योर ओवरऑल प्रोफाइल इज़ रियली गुड, तो आपके पास भी डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आ सकती है. ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ एक वर्क एक्स वाला बैठा है तो आप ये समझो कि अब तो इसी की हो गई वो अपॉर्चुनिटी या ऐसा कुछ हो गया. ऐसा नहीं होता. See, talking from a fresher's point of view, I am a fresher as I mentioned earlier. तो मतलब मैंने भी सुना था कि दुबई इज़ नॉट अ मार्केट फॉर फ्रेशर्स, बट आफ्टर आई गॉट माई इंटर्नशिप एंड आफ्टर आई सॉ द मार्केट, इट्स नॉट ट्रू. मतलब हाँ, अपर हैंड होता है उनके पास, बट इफ़ योर CV इज़ गुड बिल्डअप, यू हैव डन अ लॉट ऑफ good courses, maybe your internships, previous internships, or you are inclined towards certain kind of STPs, you have done a lot of that. So मतलब अगर तुम अपने CV को build up कर रहे हो ना, you are into extracurricular activities as well, तो you are at the same power with the work ex people. So you do not lag behind in any format. मतलब मेरे को भी था ये डाउट, ऑनेस्टली बोल रही हूँ. तो दुबई मार्केट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दुबई मार्केट, it is not true, and you have to work on your CV more to like have a good hands-on, like good internship, good roles and good stipends as well. And for the placements as well, the same scenario lies. Yeah, I would recommend one more thing, suggest one more thing basically, कि as a fresher you should also be participating more actively in the case competitions. कोई भी case competition आ रहा है and if you feel like you can do it, it's your interest, तो take that opportunity, क्योंकि ultimately that thing will build up your CV. Yeah, and agreed, resume. agreed. I Right? agree. All right. So I believe these were the questions which you guys were asking, and we would definitely love कि अगर आपके और भी कुछ questions होते हैं, in the description we would mention our Instagram IDs, our LinkedIn IDs as well, so you can ask queries. कुछ भी queries आती है, वी ट्राइड आर बेस्ट कि जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं अब तक उन्हें हम एड्रेस कर सकें. बट आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आ रहे होते हैं कॉलेज में, स्पेशली द DCV प्रोग्राम, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. तो वी डेफिनेटली इन्वाइट दोज क्वेश्चंस, एंड आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमसे पूछ सकते हैं. इवन द कमेंट सेक्शन इज ओपन, राइट. तो अल्टीमेटली अब आ जाता है कि शुड यू चूज DCV प्रोग्राम और नॉट. I believe you should go ahead with that because it's giving a lot of opportunities. या यू अब सारी चीज़ें मेंशन कर दी, सारी की सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि यू गेट अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड प्रोफेसर्स हियर आर फ्रॉम डिफरेंट नेशंस. तो बहुत सारी लर्निंग्स हैं, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू योर प्रेफरेंस. मतलब आपको क्या सही लगता है. इफ़ यू आर लाइक ओके आई रियली want to work in global settings, I really, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी होता है ना कि they want to settle in abroad. तो अगर आपका वो पर्सपेक्टिव भी है तो मे बी दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी, राइट. तो एट द एंड ऑफ द डे एज आई मैंशन, इट डिपेंड्स अपॉन यू. आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, डिपेंड्स अपॉन यू. एंड ओवरऑल हम लोग अपनी तरफ से कहेंगे कि DCV प्रोग्राम इज़ रियली गुड, और काफ़ी लर्निंग्स हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, and we enjoy our time here. Yeah, that's it from my side. If you have any kind of other doubts, as he mentioned, you can ping us anytime and we'll be happy to clear up your doubts. That's it. Yeah, thank you so much for watching, and we'll see you in the next video. On the corner where the shadows creep, whispers of the city secret.